come to the book of Flamingo, second chapter. Let us start the second section, page number 17. From the beginning. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about the cars? I ask. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. मैंने पूछा तुम्हें कार के बारे में कुछ चाहते? तो उसने बोला मैं ड्राइविंग सीखूंगा. And his dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. लेकिन उसका जो इच्छा है वो केवल मिरेज जैसा दिखाई देती, एक मरीचिका जैसा दिखाई दी, एक ओयासिस जैसा दिखाई दी, एक काल्पनिक बात का जैसा दिखाई दी. We know that to become a driver is not an easy thing, and his family members have no money to spend for that. And if they want to send him, they have to stop him from the work he is doing there. And after that, he wants to go there. And if he goes there, the income of the family will decrease. So many problems are there. So we can say that his desire is imagination, his dream is simply an imagination. It is just like a mirage. Mirage means something that seems to be far away, but they really do not exist. कुछ ऐसा चीज़ है जो आगे दिखता है. यू डायरेक्टली गो टू ए फील्ड और दूर देखा जाए तो आपको हरियाली दिखाई दे. जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ हरियाली नहीं होगी और आगे हरियाली दिखाई देता है. दिस इज द सिचुएशन ऑफ मिरेज. इस तरह की एक बात उसके मन में आ गया. तो इट्स ए गुड थिंग. ए पर्सन थिंक्स something different from other people. So I asked him, do you know anything about the cars? I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looks like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad. And this person, Mukesh, is from Firozabad, and it is famous for bangles. Every other family in Firozabad is engaged in bangle making. वहाँ के सारे लोग बैंगल बनाने का काम में लगे हुए हैं. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. वहाँ के हर एक परिवार बैंगल बनाने में लगे हुए, छोटे से लेकर बड़े तक, सुबह से लेकर शाम तक इस बैंगल बनाते हैं. लेखक कहते हैं कि ये पूरा ये बताया, इट इज़ द सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, welding, glass making bangles for all the women in the land, it seems. अपने देश के सारे विमेन के लिए वो चूड़ियाँ बनाते हैं. मुकेश फैमिली इज अमंग दम. मुकेश का फैमिली भी ऐसे एक परिवार के. And none of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures, in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him
and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. छोटे बच्चों से इस तरह का काम कराना इलीगल है, हमें भी पता है। अगर वो कानून एनफोर्स किया जाए, यहाँ हम काम करने वाला मुकेश समेत 20,000 बच्चे यहाँ से बाहर निकल आएंगे। मुकेश आइस बीम आस volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश लेखक को अपने घर की ओर ले गए बड़े गर्व के साथ, बड़े प्यार के साथ, और घर पे पहुंच के तो कहते हैं ये रीबिल्ट किया हुआ है, दोबारा बनाया हुआ है। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animal coexisting in a primeval state. जाने के रास्ता बिल्कुल गंदा, स्टिंगिंग लेन से डर्टी एरिया है, and that is choked with garbage. इधर उधर कचरा भरा हुआ है, and there is no hovels with the crumbling walls. उसके जो घर hovels गंदे गंदे घर है, और उसका किसी किसी का दीवार टूटा हुआ है, क्रैक्ड है, डोर्स वुबली है, हिलता जुलता, कमज़ोर। नो विंडोज़, इस घरों में खिड़कियां तो होते ही नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल कोएसिस्टिंग इन ए प्रिमीवल स्टेट। प्रारंभिक तरीका से देखने वाला एक ऐसा स्थिति है जो आदि मानव का रूप में जो जानवर और इंसान एक साथ रहता था, ऐसे एक स्थिति यहाँ देखने को मिलता है। He stops at the door of one such house. ऐसा कई पार करके हम आगे बढ़े तो एक घर के पास जाके वो रुक गए। And he bangs a wobbly iron door with his foot, लात मार के, and pushes it open, उसका गेट खोल दिया। And we enter a half built shack, एक छोटा सा झोपड़ी में हम एंटर किए। In one part of it thatched with dead grass, उसका एक हिस्सा में एक छोटा सा छत दिखाई दे रही है, वो पूरा छप्पर डाल रखा है, घास से बना हुआ छत है। इस ए फायरवुड स्टव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वसल, वहाँ कुछ पका रहे, बड़ा एक बर्तन में, वसल मीन्स बर्तन में कुछ पका रहे। हमने ध्यान से देखा, इट वॉज ऑफ सिसलिंग स्पिनिच लीव्स, उसके अंदर पालक के तैयारी कर रहे। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और बाहर देखा कई चपटे चपटे बर्तन बड़े बड़े पड़े हैं एल्यूमिनियम के बने हुए, और उसमें चॉप्ड वेजिटेबल देखने को मिला। ये फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। ए फ्रेल वुमन, कमज़ोर लेडी, पूरे परिवार के लिए खाना बना रहे। थ्रू आइस फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, धुआं से उसके आंखें भरे, फिर भी वो मुस्कुरा रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, ये मुकेश की भाभी है। एंड नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जवान है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father.
लेडी थोड़ा तेज है, मस्त है, घर संभालने वाली है, हिम्मत है, तीनों आदमी को ऊपर राज करने वाली लेडी है, जो उसके पति के छोटे भाई और पिताजी. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जैसे हम राजस्थानी लोग हैं, हमको पता है शादीशुदा लेडीज़ को बड़े लोगों के सामने घूंघट डालना पड़ता है. जैसे बुजुर्ग लोग या बड़े लोग या पति लोग अपने सामने आ जाता है तो रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा छिप जाता है और अपने ऊपर वेल डालते हैं, मतलब वेल को खींच लेते हैं, घूंघट सही से डाल देते. वेल मीन्स घूंघट. As custom demands, daughter-in-laws must veil their faces before male elders. वहाँ का सिस्टम है, बड़े लोग आते समय बहू लोगों को और लेडीज़ लोगों को इस तरह से घूंघट डालना पड़ता है. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. इसी घर का भी मुखिया चूड़ी बनाने वाला है. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house. ये जो मुखिया है, इतना साल के काम के बाद भी शुरू में वो टेलर का काम कर रहे थे, उसके बाद बैंगल मेकिंग में लगे हुए ये पूरा जीवन काल में और अपने घर को रेनोवेट कर नहीं पाए. एक घर रेनोवेट कर नहीं पाए. रेनोवेट मीन्स मेक ए न्यू वन. एक नया घर बनाने में असमर्थ रहा, उसका मतलब उसका घर का स्थिति हमने देख ही लिया. वो इसलिए वो कहते हैं कि सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, दोनों बच्चों को पढ़ाया. ये खूबी है उस परिवार के. ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज़ टीच दम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स. उन दोनों बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वो दोनों बच्चों को क्या भी सिखाया, अपना धंधा भी सिखाया. पढ़ाई में सही नहीं निकला, कोई धंधा करके जीवन बिताना तो है ही. इसलिए आप लोगों से भी कहते रहता हूँ तो पढ़ाई कर. लेकिन आप लोग कौन सा परवाह करते हैं. कोई ना कोई धंधा भी सीखें तो ज़िंदगी बिता सकता है. ऐसे ABCD सीखे बाद में जाके मैं सीनियर पार किया, सीनियर अटक गया, यूँ बोला तो कोई नौकरी कुछ नहीं मिलने वाला है. यू हैव टू डू समथिंग. तो आजकल के ज़माने में अच्छा मौका है, तनख्वाह भी अच्छा मिलता है. सो वर्क हार्ड. इस तरह के बैंगल बनाने वाला एक काम वो पिताजी ने अपने बच्चों को सिखाया, इसलिए वो परिवार अभी टिके हुए. इट इज़ हिज कर्मा और कर्म, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है, किस्मत की बात है भाया, और मेरे खुद के पति काम करते करते अंधे हो गए. कैन गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज. वो कहती है ईश्वर ने जो दिया है वो कोई बदल सकता है क्या. अगर हमें बैंगल बना के ही जीना है, जीना ही है. नोबडी कैन चेंज दिस. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every house there, in every other house there, every other yard, every street in Firozabad. Spiral of bangle, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color, born out of the 7 colors of the rainbow, line mounts in unkept yards. कहते हैं इसी परिवार में जन्म होने के बाद फिरोज़ाबाद में यही काम करते जीवन बिताना. जाओ कहीं भी देखो, वहाँ के हर घर पे, रास्ते में, हर जगह में यही बैंगल का गुच्छा और हीप देखने को मिलेगा, कई कलर के. And she says the condition is like this. And born in the
caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad, spirals of bangles, colors like sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcrafts, pushed away young men along the narrow lanes of the शांति टाउन. देखा जाए तो इस तरह के जो बनाया हुआ जो बैंगल्स है, लोग उसको फोर व्हील गाड़ी में भर के इधर उधर ले जाते हुए नजर आते हैं. एंड इन डार्क हटमेंट्स next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. देखना है तो देख लो, हर घर पे परिवार के छोटे बड़े बच्चे, लड़के लड़की पापा मम्मी के साथ, बड़ों के साथ बैठ के ऑयल लैम्प की रोशनी में बैठ गए और उसको जोड़ते 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 नजर आते, जो हल्की रोशनी है जिसकी वजह से बताया है देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड. और बाहर का रोशनी का इतना रोशनी अंदर नहीं है और इसलिए उसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है. दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, जिसकी वजह से वो अडल्ट होने से पहले उसका आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाता है. और इस तरह की एक चीज़ देखने को मिला मुकेश के परिवार में. बट द थिंकिंग ऑफ मुकेश टू डू सम अदर वर्क इज़ ए ग्रैंड सक्सेस. इट्स ए particular appreciable thing. He is thinking about something better. He wants to be a good person. वो ये धंधा छोड़ करके वो दूसरा कोई धंधा चालू करके जीने का कोशिश सोच रहे. इट इज़ ओनली ए थिंकिंग, बट वी कैन नॉट से दैट ही कैन बी फुलफिल्ड इट. नो. In this way we see the condition of Mukesh and his family. And now come to a girl called Savita. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. देखो, एक लड़की बैठी है, उसके साथ एक elderly woman भी है, soldering pieces of glass. ग्लास को जोड़ रहे. As her hands move mechanically like the tongs of a machine. उसको ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखें तो ऐसा दिखता है कि कोई मशीन से काम कर रहे. हाथ से तो कर रहे, लेकिन उसको देखे, उसका एक्सपीरियंस देखे, इसका तरीका देखे, ऐसा लगता है कोई मशीन से काम कर रहे. I wonder if she knows the sanctity of the bangle she hides, he helps make. उसको पता है वो जो चीज़ बना रहे उसका पवित्रता क्या है. इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमन्स सुगाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज. ये इतना पवित्र दिखाई देता है. एक इंडियन वुमन्स का सुहाग कैसा है. इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे when her head is wrapped with a रेड वेल. अभी तो बड़ा आराम से बैठी है, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद देखा जाए तो उसी का सिर पे भी क्या दिखाई देगा, एक घूंघट दिखाई देगा. एंड हर हैंड्स डाइड रेड विथ हेना. उसके हाथों में पूरा मेहंदी दिखाई देगी. एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट. उसके कलाई में पूरा लाल चूड़ी देखने को मिलेगा. एंड शी विल देन बिकम ए ब्राइड. अगर ऐसा दिखाई दिया तो समझ लो वो ब्राइड बन गई. ब्राइड मीन्स वधू. लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड्स हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो. उसके पास जो बैठी है एल्डरली लेडी, वो भी कई साल पहले इस तरह से शादीशुदा हो गई थी.
एंड शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके हाथ में अभी भी चूड़ी है, इसका मतलब पति जिंदा है। एंड बट नो लाइट इन हर आइज, और उसका चेहरे पे देखो, आंखों में देखो, कोई चमक नहीं है। एक तो वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज, देखो कहती क्या है, एंड पूरा जीवन भर एक समय का खाना भी सही से खा नहीं पाई। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट इज़ व्हाट शी हैज़ रीप्ड। उसका पूरा जीवन काल में एक समय का सही खाना भी बना के खा नहीं पाई, बना के खा नहीं पाई, मीन्स उसके पास है ही नहीं, खाने के लिए है ही नहीं। जो नॉर्मल खाना होता है वो खा के वो जीवन बिताए इस समय तक। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, उनके पति कहते दाढ़ी वाले, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ी बनाने के अलावा और कोई काम ही नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं जीवन काल में एक घर बनाया, ये मेरी खूबी है, ये तो अच्छा भी है, क्योंकि लड़की है ना, लड़की जिस घर पे रहते हैं उसके लिए एक अच्छा घर होना जरूरी है, ये लेसन हमें ये सिखाते। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। फिरोजाबाद के कहानी हम देखें, ये सुनकर ये देखकर आश्चर्य होता है कि कम से कम एक आदमी घर बनाने में सफल हो गए। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम आराम से सोने के लिए एक घर तो बनाए। एंड द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। हम सोचेंगे चूड़ी बनाएं तो पैसा तो आ जाते हैं ना, लेकिन ऐसा पैसा तो बचाने के लिए नहीं है, बस पूरा घर का खर्चा के लिए नहीं है, तो बचाएंगे कहाँ से? चूड़ी बनाते रहने हैं तो, और चूड़ी का रॉ मटेरियल्स लाना है, वो लाएं तभी तो, बस यूँ कह सकते हैं काम चल रहे, खाने पीने का हिसाब किताब हो ही जाता। एंड द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जवान लोग बुजुर्ग लोगों का विलाप को याद करते हैं। लैमेंट यानी विलाप। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, इतना समय बीत जाने के बाद भी फिरोजाबाद में और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. साल भर का इस तरह का काम के वजह से कोई नया काम के लिए सपना देखना ही बेकार रह गए। And why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. कुछ लोगों से बात किया तो पता पड़ गया उन लोगों को धोखा दिया कुछ लोगों ने उधर का ही मिडिलमैन, और उन लोगों को फंसा के उनके पिताजी को और उसके पूर्वजों को मतलब फंसा के रखा है। मैं उससे पूछा कि तुम लोग कोई कोऑपरेटिव क्यों बनाते, क्यों नहीं बनाते? Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. तो उन लोगों ने ऐसा कहा, अगर हम ऐसा ऑर्गेनाइज किया कुछ तो पुलिस वाले आके हमें घसीट के बस ले जाते हैं और आखिरी में जेल में बंद करवा देते इन लोगों की मदद से, इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे। देयर इज़ नो लीडर अमंग दम, हमारे बीच में ऐसा कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प दम सी थिंग्स डिफरेंटली, और हमें सही रास्ते में चलाने वाला कोई ऐसा भी नहीं है। देयर फादर्स आर सो टायर्ड एज दे आर, और उसके फादर्स लोग काम करते करते थक गए। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वो कहता है कि हमारा जीवन हमने कैसे बताया। अपाथी मीन्स उदासीनता, हेट्रेड, नफ़रत, कुछ भी कह सकते हैं, और हम किसी किसी का नफ़रत का पात्र बनकर आगे काम करते करते मुझे
हमें अन्याय के अलावा कुछ मिलते ही नहीं थे कि ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sakukas, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. इन लोगों की बातों को देखे मुझे दो बात समझ में आ गया. गरीबी के बीच में फंसे हुए एक ग्रुप के लोग, अगर वो सुधरना चाहें तो उसको दबा के रखने के लिए कोशिश करने वाले साकूकार से मिडिलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स लो, अधिकारीगण, ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस. पूछो ही मत, पॉलिटिशियन भी इनको आगे बढ़ने नहीं देते. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. और कुल मिला के इन लोग सब मिलकर इन लोगों को ऐसा बना के रखा कि वो आगे बढ़ नहीं सकता. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. एक अच्छा काम करने के लिए सोचने का समय से पहले अपने पिताजी लोगों के साथ मिलकर वही काम करना पड़ता था. To do anything else would mean to dare. इसको छोड़ के कुछ करने के लिए सोचना मतलब डरने का मामला है. एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ इज ग्रोइंग अप. अब उसको ऐसा कोई परिस्थिति मिलते नहीं है क्योंकि बचपन से ही बैठ के काम करते आ रहे. एंड व्हेन आई सेंस फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम चीयर्ड. ये सब कुछ दिमाग में रह के मैं मुकेश की ओर सोचा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मज़ा आ गया. क्योंकि कम से कम he says I want to be a motor mechanic. He repeats. ये सब कुछ सुनने के बाद में again he asked him, what do you say now? Then also he said, I want to be a mechanic. मुझे तो मैकेनिक बनना, चाहे कोई भी हो, whatever may be the situation, whether there is a problem with the persons explained earlier, I don't care. I want to be a mechanic, he repeats. He will go to garage and learn. मैं तो किसी गैरेज में जाऊंगा और सीख लूँगा. But the garage is a long way from your home, I asked. तो मैंने पूछा, गैरेज तो बहुत दूर है ना, तो कैसे जाओगे? I will walk. He insists. देखो उसका कॉन्फिडेंस, मैं पैदल जाऊंगा. वही क्यों उसने कहा मैं पैदल जाऊंगा? क्योंकि उसको मालूम है उस वहाँ तक जाना, कोई साधन लें तो उसका किराया देने के लिए उसका पेरेंट्स के पास नहीं है. इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस. पेरेंट्स का सिचुएशन देख के काम करने वाला एक बेटा. आप लोग भी ऐसा सोच के काम करें, पेरेंट्स के लिए कितना तसल्ली होगी. लेकिन यू पीपल डोंट डू एनीथिंग लाइक दिस. एंड ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, बट द गैरेज इज a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो क्या? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. नहीं, मुझे कोई प्लेन नहीं उड़ाना. देखो उसका इच्छा, जो काम उससे हो सकता है वो करना चाहते हैं. लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े सपना देखते हैं. मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं सीए बनूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं इंजीनियर बनूँगा, और उसके बाद लोगों के हाथ से कंसल्टिंग फीस छीन के लूँगा, और इंजीनियर बन जाए तो सीमेंट कम डाल के पुलिया गिरा दूँगा. ये पहले बढ़िया सोचे तो कमाई के लिए. लेकिन यहाँ देखो एक बच्चा, उसका जो विचार है इज़ वेरी सिंपल, वेरी नाइस. आई ऑल्सो अप्रिशिएट दैट. हम जो कर सकता है वो करने के लिए कोशिश करना है, सफल भी होना है. इसी में एक मतलब. एंड ही सडनली साइलेंट. जब उससे पूछा गया कि तुम प्लेन उड़ाना चाहोगे, उसने साफ मना किया. नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बारसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट. लेकिन ये सुनने के बाद उसका चेहरा थोड़ा उतर गया, ये तो पता है. फिर भी हो, he is content to dream of cars that he
सी इज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। लेकिन तुरंत उसने अपना मन बदला के ये दिखाया, मैं इस बात पर संतुष्ट हूँ, मुझे कम से कम एक मैकेनिक बने तो बढ़िया है, क्योंकि मेरा शहर के सामने से और इधर से उधर से कार जाते हुए मैंने कई कई बार देखा। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद के ऊपर से कम एरोप्लेन उड़ते हुए नज़र आया, इसलिए मुझे उसके बारे में कोई आशा भी नहीं, इच्छा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन कार्स को इधर उधर जाते हुए मैंने खूब देखा। सो आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक। इस तरह से कुछ बातें बदल बदल के हमारे कैपेसिटी के आधार पर, हमारे एबिलिटी के आधार पर, हमारे फैमिली के हिसाब से बदल के सोचे तो आवर लाइफ विल बी ए बेटर लाइफ and we will get a good position in the society and we can do something like that. So think like this, think like Mukesh, do something, work hard and try to earn your living. God bless you. Okay.